CBSE is very proactive. CBSE has taken a massive step. CBSE has taken a massive step. CBSE लगातार evaluation process को CBSE introduced on-screen marking system. CBSE introduced the on-screen marking system. CBSE is very proactive and responsive to every concern, challenges and grievances. CBSE has taken a massive step towards modernizing our examination ecosystem. CBSE has taken a massive step towards modernizing our examination ecosystem. CBSE लगातार evaluation process को ज़्यादा transparent, accurate और technology driven बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है. CBSE introduced on-screen marking system, making a significant shift from the traditional physical evaluation to a fully digital evaluation or assessment process. This year marks a historic transformation in the CBSE evaluation system. CBSE introduced the on-screen marking system, a major digital step that makes evaluation more accurate, transparent and reduces manual errors. दोस्तों, आज का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इस सवाल को समझिए। क्या देश में शिक्षा मंत्री का ऑडिशन चल रहा है? ऑडिशन का मतलब समझिए कि जब आप किसी फिल्म सीरियल में एक्टिंग करना चाहते हैं तो उससे पहले ऑडिशन दिया जाता है। तो अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्या शिक्षा मंत्री का ऑडिशन चल रहा है? आज की खबर में यही समझाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस वक्त देश में शायद शिक्षा मंत्री का ऑडिशन चल रहा है? सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो यही कहानी बयान कर रहे हैं। Namaskar, I am Seema Bajaj, Principal, Remal Public School. Dear children, this year CBSE introduced the on-screen marking system, a major digital step that makes evaluation more accurate, transparent and reduces manual errors. We understand that some students may have noticed the issues like blurred scans or portal glitches. Please don't worry. CBSE has already addressed these concerns and has provided a re-evaluation process to resolve them. If you feel there is any discrepancy, do use the official CBSE re-evaluation window. Our school team is fully available to support and guide through the process. Stay calm, trust the process and remember, we are with you at every step. Thank you. कभी फिल्मों में ऑडिशन होते थे, कभी गायक बनने के लिए लोग लाइन लगाते थे। एक दौर था जब टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार का वो मशहूर विज्ञापन आता था, अगर आपके पास टैलेंट है तो मैं दूंगा आपको मौका। ये बात आपको याद होगी। लेकिन अब हालात ऐसे दिख रहे हैं जैसे देश के बड़े बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल, डायरेक्टर और शिक्षक किसी सरकारी इमेज बचाओ अभियान के लिए ऑडिशन दे रहे हो। सोशल मीडिया पर अचानक एक जैसी भाषा वाले वीडियो की बाढ़ आ गई। Today I wish to address all the parents and students regarding the class 12th result. I understand the concern and anxiety of the student related to the new reformed introduced by CBSE, a significant step towards adopting technology by introducing OSM, that is on-screen marking. It was introduced with a positive outlook, keeping in mind that it would be fair, transparent, accurate and faster, which it was. During the recent process related to the on-screen copies, which students are finding blur, unchecked, CBSE is very proactive and responsive to every concern, challenges and grievances. As this is the era of technology, I think we should stay patient, have confidence and trust in the process of CBSE and be assured that CBSE as well as all the CBSE affiliated school principals, heads and the team are committed
towards your this journey. We will ensure that all your concerns and grievances are sorted out soon. CBSE is taking steps towards sorting out all the issues related to your on-screen copies. Thank you. कहीं प्रिंसिपल कह रहे हैं OSM बहुत पारदर्शी है, कहीं छात्र कह रहे हैं हमें अपने नंबरों से कोई शिकायत नहीं, और कहीं शिक्षक बता रहे हैं इस सिस्टम में कोई कमी नहीं। सवाल ये नहीं कि कोई सिस्टम अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि क्या देश में अब हर आलोचना का जवाब प्रमोशनल वीडियो या टूल किट से दिया जाएगा? Batch of 2026. I am reaching out today to speak directly with you regarding the recent class 12th results and to address some of the questions and answers that naturally accompany the crucial milestone. This year, CBSE has taken a massive step towards modernizing our examination ecosystem by introducing the on-screen marking system. Transitioning from traditional physical paper checking to a fully digital format is a monumental shift. Under this framework, nearly 98 lakh answer sheets were digitized globally. As educators, we look at this reform positively. From an academic standpoint, the OSM system has fundamentally improved the structural integrity of our assessments. By automating totals and question-wise score mappings, it completely eliminates the human clerical errors, such as calculation slips or posting mistakes, which used to plague traditional physical marking. It frees up our evaluators to focus directly and strictly on content rather than arithmetic, paving the way for a more standardized, transparent and eco-friendly evaluation process aligned with the National Education Policy. However, as with the rollout of any technology on such an unprecedented scale, I know that a few implementation bumps have caused concern. Some of you who accessed your digital copies have pointed out instances of blurred pages, illegible scans, or technical glitches on the post-result portal. Please do not panic. I want to reassure every student and parent that no child will be allowed to suffer due to a technical error. CBSE has been highly proactive, empathetic, and communicative regarding these teething issues. The board has already issued official communications to address these exact grievances. CBSE has provided the re-evaluation safety net to all of you. If you have received a scanned copy where the pages are blurry or missing or unchecked, the re-evaluation portal is your official remedy. CBSE's dedicated back-end teams are thoroughly validating every single complaint. Your hard work, children, over the past year is secure. If you feel there is a discrepancy between your performance and your reflection on the digital sheet, I highly encourage you to utilize the official CBSE re-evaluation window. Our school's academic coordinators and teachers are fully available to guide you through the step-by-step application process on the portal. Let us embrace this digital advancements with patience. Trust your system. Use the provided safety nets, and remember that our school stands firmly with you at every step of this journey. Thank you and God bless you all. मामला CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी OSM से जुड़ा है। इस साल बोर्ड कॉपियों की जांच डिजिटल तरीके से हुई, लेकिन रिजल्ट आने के बाद सोशल मीडिया शिकायतों से भर गया। आपको याद होगा कि
एक बच्चे ने जब इसके बारे में कहा तो डीडी न्यूज़ के एक एंकर ने, जी हाँ, जो एंकर बहुत राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, उन्होंने उस बच्चे को पाकिस्तानी भी बता दिया। बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी मांगने का क्या मतलब जब आप अपने देश के बच्चे और नौजवानों पर यकीन ही नहीं करते और इतने बड़े चैनल में, देश के चैनल में बैठकर इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। किसी ने कहा अपलोड की गई उत्तर पुस्तिका अधूरी है। किसी ने कहा री एवोल्यूशन पोर्टल क्रैश हो रहा है। कहीं पेमेंट फेल हो रहे हैं। कहीं छात्रों ने आरोप लगाया कि उनकी कॉपियां ठीक से दिखाई ही नहीं दे रही और फिर अचानक सोशल मीडिया पर बचाव अभियान शुरू हो गया। I am Mrs. Dina Nair, Principal of New Era Senior Secondary School, Vadodara. I am reaching out today to speak directly with you regarding the recent Class 12 results and to address some of the questions and anxieties that naturally accompany this crucial milestone. This year, CBSE has taken a massive step towards modernizing our examination ecosystem by introducing the on-screen marking OSM system. Transitioning from traditional physical paper checking to a fully digital format is a monumental shift. Under this framework, nearly 98 lakh answer sheets were digitized globally. As educators, we look at this reform positively. From an academic standpoint, the OSM system has fundamentally improved the structural integrity of our assessments. By automating totals and question-wise score mappings, it completely eliminates human clerical errors such as calculation slips or posting mistakes, which used to plague traditional physical marking. It frees up our evaluators to focus strictly on content rather than arithmetic, paving the way for a more standardized, transparent and eco-friendly evaluation process aligned with the national education policy. However, as with the rollout of any technology on such an unprecedented scale, I know that a few implementation bumps have caused concern. Some of you who accessed your digital copies have pointed out instances of blurred pages, illegible scans or technical glitches on the post-result portal. Please do not panic. I want to reassure every student and parent that no child will be allowed to suffer due to a technical error. CBSE has been highly proactive, empathetic and communicative regarding these teething issues. The board has already issued official communications to address these exact grievances. Number 1, the re-evaluation safety net. If you have received a scanned copy where pages are blurry, missing or unchecked, the re-evaluation portal is your official remedy. CBSE's dedicated back-end teams are thoroughly validating every single complaint. Your hard work over the past year is secure. If you feel there is discrepancy between your performance and your reflection on the digital sheet, I highly encourage you to utilize the official CBSE re-evaluation window. Our school's academic coordinators and teachers are fully available to guide you through the step-by-step application process on the portal. Let us embrace these digital advancements with patience. Trust the system, use the provided safety nets, and remember that our school stands firmly with you at every step of this journey. Thank you and God bless you all. ये बचाव अभियान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस तरह के काम के लिए। आपने देखा होगा कि इसमें ज़्यादातर ना गोदी मीडिया के एंकर लग जाते हैं, उनके ट्वीट, उनके वीडियो सब एक जैसे होते हैं। इस बार गोदी एंकर के जो एंकर हैं थोड़ा पीछे हैं, इस बार आगे कर दिया गया है प्रिंसिपल्स को, डायरेक्टर्स को और स्कूल के बच्चों को। आप वीडियो देखिए, शर्म आएगी कि हम कोई सिस्टम के बारे में अच्छा बुरा बताने से पहले खुद एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर देते हैं कि जो सरकार कर रही है सब अच्छा है, बेहतर है। भाई सवाल तो पूछा जाएगा ना, जो परेशान में है उसकी परेशानी ना समझकर सिस्टम की तारीफ में लग जाता है। Respected parents and dear students, I am Sarika Singh, Principal
श्रेया देवी, भागीरथ राठी, महेश्वरी विद्यापीठ स्टूडेंट। आज मैं आप सभी से सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट्स और नए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के बारे में बात करना चाहती हूँ। सीबीएसई लगातार इवैल्यूएशन प्रोसेस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इस वर्ष लगभग 98 लाख आंसर शीट्स का डिजिटाइजेशन किया गया, जो कि अपने आप में एक लैंडमार्क डिजिटल शिफ्ट है। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, इट हैज मेनी एडवांटेजेस. It minimizes clerical and calculation errors, ensures greater transparency, and also supports an eco-friendly evaluation process. यह एक ऐसा प्रयास है जो भविष्य की मॉडर्न एंड स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट सिस्टम की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन हम सभी यह भी समझते हैं कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इतने बड़े स्तर पर इम्प्लीमेंट की जाती है तो कुछ टीदिंग इश्यूज आना तो स्वाभाविक है। यह केवल ऑन स्क्रीन मार्किंग की बात नहीं है, बल्कि हर नए सिस्टम के साथ शुरुआत में कुछ चुनौतियां तो आती ही हैं। कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने ब्लर्ड स्कैन्स, पोर्टल ग्लिचेस और टेक्निकल डिफिकल्टीज जैसी कंसर्न्स भी शेयर की हैं और उनकी चिंताएं बिल्कुल स्वाभाविक हैं। बट एट द सेम टाइम वी मस्ट कीप आवर फेथ एंड ट्रस्ट इन सीबीएसई। द बोर्ड is continuously working on these concerns and has already provided proper provisions for verification and re-evaluation. मैं सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि किसी भी विद्यार्थी को टेक्निकल एरर्स की वजह से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। Every answer sheet will receive fair evaluation and re-evaluation with complete transparency and responsibility. If any student feels there is a discrepancy in his or her marks, they should confidently use the official CBSE re-evaluation portal. हमारी स्कूल टीम, टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स हर स्टेप पर गाइडेंस और सपोर्ट के लिए पूरी तरह उपलब्ध है। Dear students, I urge you all to stay positive, patient and confident. Results are important, but they are not bigger than your hard work, learning and potential. So let us all embrace this digital advancement with trust, patience and optimism. Together, we will continue to support and encourage every child towards a bright and successful future. Thank you and my heartfelt blessings and best wishes to all our students and parents. जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक कई स्कूलों को एक तरह की सोशल मीडिया प्ले बुक भेजी गई, यानी कैसे वीडियो बनाना है, क्या बोलना है, किस तरह सिस्टम की तारीफ करनी है। मतलब सीबीएसई वालों का ना कोई जवाब ही नहीं है। इधर रिजल्ट का पेज ब्लर है, टेक्निकल ग्लिच की वजह से ना बच्चों की जान अटकी हुई है और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल को स्क्रिप्ट भेज रहे हैं कि आप और आपके बच्चे आइए, कैमरे के सामने खड़े होइए और एक पॉजिटिव सा वीडियो बनाइए सीबीएसई के लिए, जिसमें सीबीएसई के बारे में बहुत पॉजिटिव बातें कही गई हो। तो खबर ये है कि सीबीएसई के जो रीजनल ऑफिसर्स हैं वो प्रिंसिपल्स को और बच्चों को वीडियोज़, पॉजिटिव वीडियो सीबीएसई के लिए बनाने के लिए पुश कर रहे हैं, जिसमें कहा जाए कि सीबीएसई जो है, जो सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग है वो बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है, एरर फ्री है, मतलब उनकी तारीफ़ों के गुण गाए जाएं। मतलब यहाँ बच्चों की और पेरेंट्स की जान अटकी हुई है और सीबीएसई चाहता है कि बच्चे और उनके लिए पॉजिटिव वीडियोस बनाएं। मतलब कुछ तो एक शर्म होती है, एक थोड़ी सी एक शर्म होती है जो शायद ख़त्म हो चुकी है। दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी से लेकर केंद्रीय विद्यालय तक, जवाहर नवोदय विद्यालय से लेकर निजी स्कूलों तक कई वीडियो में लगभग एक जैसी भाषा सुनाई दी गई है और आप भी सुन सकते हैं। 3-4 लाइनें देखिए, एकदम सेम स्क्रिप्ट आपको लगेगी। I am here to address the recent Class 12 Board Examination 2026 results and some of the concerns, questions that have naturally risen
at this important stage for the students, for the parents, and for the educators. This year, CBSE introduced on-screen marking system, making a significant shift from the traditional physical evaluation to a fully digital evaluation or assessment process. Around 98 lakh answer sheets, these were digitized, they were evaluated through the system. From an academic perspective, this initiative is a step towards improving the transparency, the accuracy, and basically standardization of the evaluation process. This system, it has minimized the clerical errors like totaling, posting mistakes, and this has allowed the evaluators to focus more effectively on the quality of responses. At the same time, as with any large-scale technological transition, there have been technical issues which have been reported. There are students who access their scanned answer sheets and they've noticed that there are blurred pages, there are unclear scans, there are technical glitches after the result portal has been opened. I would request all not to panic. I want to reassure every student, every parent that no child will be allowed to suffer because of this technical error. CBSE has been highly proactive, empathetic, compassionate, and it has been extremely communicative regarding these issues. The board has already issued official communication to address these grievances and to talk about the re-evaluation safety net. If you have received your scanned copy where the pages are blurry, where the pages are missing, or those are unchecked, the re-evaluation portal is the remedy for all these things. CBSE's dedicated team, it is thoroughly validating every single complaint, every single grievance. Children, your hard work over the past years is secure. If you feel there is a discrepancy between the performance and your reflection on the digital sheet, I would rather encourage you to utilize this official CBSE re-evaluation window. The school's academic coordinators, the teachers, they are fully available to guide you through the step-by-step application process on the portal. Let us all embrace these digital advancements with a lot of patience, with calmness, children, and let us trust the system and use the safety nets that have been provided to us, and remember that the school stands firmly with you at every step of your journey. Thank you and God bless you all. ये तभी हम कह रहे हैं कि ये ऑडिशन हो रहा है क्या, क्योंकि ऑडिशन में ना सेम स्क्रिप्ट एक कैरेक्टर के लिए कई आर्टिस्टों को भेजी जाती है और उस स्क्रिप्ट पे वो लोग ऑडिशन भेजते हैं कि भाई हमारा उस पोस्ट के लिए, उस किरदार के लिए सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए हम ये कह रहे हैं। एक वीडियो में छात्र कहता है OSM निष्पक्ष और पारदर्शी है। Hello everyone, myself Anuj Kumar and I have recently passed my class 12th with 96% from PM Shri Kendriya Vidyalaya No. 2 Jaipur. And I am here today to share my experience regarding the class 12th result 2026 and the benefits of OSM checking. After getting my result, I felt that the marking was fair and transparent. My expected marks and my final marks are almost similar, which shows that OSM checking helps in accurate evaluation of answer sheets. One major benefit of OSM is that the checking process becomes more systematic and less biased because answers are evaluated digitally. Examiners can clearly read the answers, important points, and easier to identify, and there are fewer chances of totaling mistakes or skipped questions. Another advantage of OSM is transparency. Students feel more confident because marks are awarded according to the written content and their presentation. In my case also, the marks I received were within my expectation based on my preparation and performance in exam. OSM checking also saves time and improves efficiency in result preparation. Because of digital evaluation, the process becomes more faster and more reliable.
I believe this system is beneficial for students because it encourages fair checking and reduces unnecessary errors. My result was positive and it met what I honestly expected after the exams. Thank you and congratulations to all the students on their results. Keep working hard and believe in yourself. Thank you. दूसरे में प्रिंसिपल कहते हैं इससे शिक्षकों को उत्तर पढ़ने का अधिक समय मिला। तीसरे में शिक्षक कहते हैं मुझे इसमें कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखा। The recent class 12 CBSE results have naturally brought excitement, questions and anxiety for many students and parents. This year marks a historic transformation in the CBSE evaluation system with the introduction of on-screen marking, a major step towards modernization, transparency and accuracy. Nearly 98 lakh answer sheets were digitalized globally. This digital system eliminates manual errors and enhances fairness in evaluation. It allows examiners to focus entirely on the quality of students' response while making the process more standardized, eco-friendly, and aligned with the vision of NEP 2020. At the same time, we understand that some students notice blurred scans, illegible pages, or technical glitches while accessing digital copies. Please don't panic. No child will be allowed to suffer because of a technical issue. CBSE has already responded proactively and empathetically to these concerns and is taking necessary corrective measures. If any student feels there is a discrepancy, kindly use the CBSE re-evaluation window. Our school team and teachers are fully available to guide and support you throughout the process. All students and parents, please trust the system, stay calm, and remember, no technical issue will be allowed to affect a student's future unfairly. Thank you. अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ इतना शानदार था तो भैया ये तो बता दो कि इतनी शिकायतें क्यों आईं। तो क्या ये शिकायतें करने वाले जैसे डीडी न्यूज़ के एंकर कह रहे हैं ये लोग देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं, क्या वो सही कह रहे हैं? बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली लेकिन उन्होंने यही आरोप लगाया। तो ये शिकायत करने वाले कौन हैं? नमस्कार, मैं श्रीमती शरद जैन केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 जयपुर से बोल रही हूँ। मैं हिंदी पीजीटी के पद पर कार्यरत हूँ और पिछले 32 वर्षों से केंद्रीय विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। 32 वर्षों में हमेशा से हम फिजिकली बोर्ड की कॉपियां चेक करते रहे, लेकिन पहली बार सीबीएसई ने थ्रू OSM कॉपी चेक करवाना शुरू किया। ये मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मुझे लगता है इससे फायदे ही थे, एक भी नुकसान मुझे दिखाई नहीं देता इसके संदर्भ में। सबसे पहले मैं कहूंगी कि समय की बचत बहुत हुई। जहां पहले एग्जामिनर 25 कॉपी चेक करने में 9 से 10 घंटे लेते थे, इस बार वही कॉपियां 25 कॉपी 5 घंटे में चेक हो गई। मैंने यद्यपि इस बार AHE के रूप में काम किया, पर मैंने देखा कि एग्जामिनर ज्यादा परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं और कॉपी बिल्कुल स्पष्ट थी। स्क्रीन पर देखने में कहीं कोई त्रुटि हमें दिखाई नहीं दे रही थी उसमें। जहां पर भी कॉपी को हम देखना चाहते थे, स्क्रॉल करना चाहते थे, करते रहे, देखते रहे और बिल्कुल त्रुटिहीन कॉपी चेकिंग थी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, कोई क्वेश्चन छोड़कर आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो टेक्नोलॉजी खुद ही बता देती है कि भाई आपने फला क्वेश्चन का वो पार्ट छोड़ दिया, उधर जाइए चेक करिए। उसके बाद ही वो सबमिट होती थी कॉपी। और इको फ्रेंडली भी थी। जब हम लोग किसी सेंटर पर जाके फिजिकली कॉपियां चेक करते थे तो ढेरों पेपर यूज करते थे उसको करने के लिए, तो उन सब की भी बचत हो गई कि एक भी पेपर हम लोगों ने खराब नहीं किया। तीसरी बात, पहले 3 जगह कॉपी चेकिंग होती थी, मतलब 3 चेक पॉइंट बनते थे कॉपी की टोटलिंग करने के लिए, उसके बावजूद भी एक्यूरेसी नहीं होती थी। इस बार केवल एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है और उसकी टोटलिंग कर रहा है, पूरी एक्यूरेसी के साथ टोटलिंग हो रही है। तो मुझे लगता है उसके फायदे ही फायदे थे। मैंने तो जब फीडबैक भी लिखा था सीबीएसई के लिए तो बहुत ही सकारात्मक फीडबैक लिखा था, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसी कॉपी चेकिंग तो हर वर्ष होती रहनी चाहिए।
क्योंकि इससे कहीं किसी बच्चे को कोई नुकसान हुआ हो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कॉपी देखने में भी बिल्कुल स्पष्ट थी। कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो फेड हो रही है कॉपी या उसमें लाइट नहीं आ रही है। तो मुझे तो लगता है सीबीएसई का बड़ा सराहनीय कदम रहा ये, और आगे आने वाले वर्षों में इसी प्रकार कॉपी चेकिंग होती रहे। तो मैं तो बधाई देना चाहती हूँ सीबीएसई को कि आजकल डिजिटल युग है, हर चीज में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो कॉपी चेकिंग में भी क्यों ना। तो मैं तो सीबीएसई को फिर से एक बार बधाई देना चाहूंगी कि इस काम के लिए उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने कॉपी चेकर्स के लिए, एएचई के लिए, एचई के लिए काम बहुत ही आसान कर दिया। धन्यवाद। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 18 लाख छात्रों में से करीब चौथाई छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मांगी है। जी हां, ये बात फिर से सुनिए। रिपोर्ट के अनुसार क्या है, लगभग 18 लाख छात्रों में से करीब 1/4 छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मांगी है। और आप सुन सकते हैं ये प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और ये न्यूज़ एंकर की बातें। ये संख्या पिछले साल से कितनी बड़ी है बताइए? ये संख्या पिछले साल से 200% ज़्यादा बताई जा रही है। यानी बच्चों के मन में भरोसे का संकट है। जब इस बच्चों के मन में भरोसा टूटता है तब केवल रील बनाकर चीज़ें ठीक नहीं होती। स्कूली शिक्षा की हालत बहुत ख़राब है, बल्कि वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई है और कई कारणों से शिकार हुई है। उसमें सबसे बड़ा कारण है कि उसका जो करिकुलम है और सिलेबस है वो इतने ख़राब तरीके से बनाया गया है कि उससे गुज़र के आप ये नहीं कह सकते कि एक विद्यार्थी को इतिहास की जानकारी हो पाएगी, विज्ञान की जानकारी हो पाएगी, भूगोल की जानकारी हो पाएगी, गणित की जानकारी हो पाएगी। तो वो जब पढ़ के निकलेगा और कंपेरेबल अगर आप देखेंगे दूसरे मुल्कों से अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी पीछे रहेंगे, क्योंकि उनका नॉलेज बेस बहुत सिकुड़ा हुआ रहेगा। तो ये तो करिकुलम और सिलेबस की बात है जो फंडामेंटल है, और वो इसलिए, और उसके आधार पर जो टेक्स्ट बुक्स बनती हैं, और वो सबसे फंडामेंटल इसलिए कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में टेक्स्ट बुक ही ऐसी चीज़ होती है जो असली चीज़ है, क्योंकि टीचर्स को इजाज़त नहीं दी जाती है कि वो टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ भी अपनी मर्ज़ी से छात्रों से बात करें। तो टेक्स्ट बुक बहुत ही रेजिमेंटेड और बहुत ही कंट्रोल्ड है। और जैसा मैंने कहा, पहले भी थी ऐसी? नहीं, आप जिस वक्त का जिक्र कर रहे थे इसके पहले के 10 सालों का, उसमें एक तरह का रिवॉल्यूशन था टेक्स्ट बुक मेकिंग में, करिकुलम मेकिंग में, क्योंकि पहली बार ये किया गया कि टेक्स्ट बुक को, और मैं पहली बार नहीं कहूँगा, प्रोग्रेसिवली, लेकिन टेक्स्ट बुक को और सिलेबस को आपने पैडागोजिक नीड्स को ध्यान में रख के बनाया, आइडियोलॉजिकल नीड्स को ध्यान में रख के नहीं बनाया। अगर आपको ध्यान हो तो उसका रेफरेंस पॉइंट था 1992 की यशपाल कमेटी की लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसमें जोर दिया गया था इस बात पर कि आप टेक्स्ट बुक तैयार करेंगे इसलिए कि बच्चे की समझ बढ़े, इसलिए नहीं कि आप ठूंस कर उसमें इंफॉर्मेशन भर दें, या ये नहीं कि जो डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन है स्टेट का, वो डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन उसको मिले। तो उस पूरी प्रोसेस को लीड किया था जो उन डिसिप्लिनरी एरियाज़ के एक्सपर्ट्स थे, और उनमें डाइवर्सिटी थी बहुत, आइडियोलॉजिकल, यहाँ तक कि अगर हिस्ट्री के हैं तो एक तरह के हिस्टोग्राफी के नहीं, 3-4 तरह के हिस्टोग्राफी के लोग। यही बात दूसरे विषयों में भी कही जा सकती है। तो ये नहीं था कि पहले की किताबें भी रेजिमेंटेड थी, अभी जो किताबें हैं वो पूरी तरह से रेजिमेंटेड हैं और वो पूरी तरह से आइडियोलॉजिकल हैं। तो उनका पर्पस एजुकेशनल नहीं है, उनका पर्पस एक तरह का प्रोपेगेंडा करना। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि पुराने बैच के छात्रों से भी OSM की तारीफ वाले वीडियो बनवाए जा रहे हैं, जबकि ये सिस्टम इस साल लागू हुआ है। यानी जिन बच्चों ने इस सिस्टम में परीक्षा ही नहीं दी, उनसे भी प्रचार करवाया जा रहा है।
अगर ये सच है तो फिर सवाल और बड़ा हो जाता है। वैसे सीबीएसई ने इससे साफ इनकार कर दिया है कि हमने ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं भेजी, लेकिन आपको हमने वीडियो दिखाया है, प्रमाण दिखाए हैं कि सब एक जैसी स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। पिछले कई दशकों से मैं तो टेक्स्ट बुक्स बनाने में स्टेट्स में भी, नेशनल लेवल पे सब जगह जुड़ी रही हूँ, और अब जो हालत है, मैंने इस तरह से जहरीली टेक्स्ट बुक्स नहीं देखी हैं पहले कभी, जिसको हम कह सकते हैं कि इतनी टॉक्सिक है कि जानबूझ के, मतलब हम और देशों में देखते हैं जहाँ जहाँ युद्ध भी हुए हैं, जहाँ जहाँ कम्युनिटीज़ में या देशों के बीच में परस्पर तनाव रहा है, वहाँ भी काम लोगों ने लिखा है कि भाई क्या हुआ है, चाहे वो फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में लोगों ने लिखा है कि टेक्स्ट बुक्स में। मगर अब जिस तरह से ये जहर ठोस के डाला जा रहा है, वो बहुत ही जहर का क्या मतलब? जहर मतलब आप चुन के, मतलब आप जो कहानी चुनेंगे उसमें छोटे बच्चों के लिए भी आप इन्फिल्ट्रेटर की कहानी चुनेंगे कि कश्मीर में इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे और वो शब्द डालना है आपको और पूरी कहानी उसकी। तो एक मिलिटरिस्टिक आइडिया के नेशनलिज्म का मतलब मिलिटरिस्टिक, तो बहुत कहानियाँ मिलिट्री या पुलिस मेमोरियल या उनकी है। मतलब ये जो जॉनर लिटरेचर का होना चाहिए अलग अलग तरह का, वो बहुत कम है। तो अब क्या अब शिक्षा भी पीआर एजेंसी से चलेगी? क्या अब असफलता का इलाज इंस्टाग्राम रील और फेसबुक पोस्ट होगा? क्या अब संस्थानों की विश्वसनीयता मेहनत से नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड वीडियो से तय होगी? दोस्तों, हम हर बार अपने वीडियो में ये सवाल उठाते हैं और आप लोग समझते हैं और आप लोग लगातार हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हम फिर कहना चाहते हैं, लोकतंत्र में सरकारें गलत भी हो सकती हैं, नीतियाँ असफल भी हो सकती हैं, सिस्टम में खामियां भी हो सकती हैं, लेकिन आज ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे सरकार कभी गलत हो ही नहीं सकती। सुबह से शाम तक बड़े बड़े चैनलों पर करोड़ों के एंकर बैठकर यही बताते हैं कि सब शानदार है, सब चंगा है, सब ऐतिहासिक है, सब पारदर्शी है, और जो सवाल पूछे वो देश विरोधी हो जाता है, जो शिकायत करे वो एजेंडाधारी हो जाता है, जो गड़बड़ी दिखाए वो नेगेटिव इंसान बन जाता है। चापलूसी की भी कोई सीमा होती है, लेकिन लगता है कि अब वो सीमा भी ख़त्म हो चुकी है। स्कूल एजुकेशन में तो जैसा सर और मैम ने बताया कि करिकुलम बेसिस पर चेंजेस जिस तरीके से लाए जा रहे हैं, दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल पेनिट्रेशन बहुत शार्पली स्टूडेंट्स के बीच में कंप्लीटली आइडियोलॉजिकल, कंप्लीटली प्रोपेगेंडा बेस्ड एजुकेशन दी जा रही है। आपके स्कूल में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो यही हम तो जब तक स्कूल से निकले तब तक अलग करिकुलम था। अच्छा। हमारे बाद के बैचेस ने जिस तरह का चेंजेस देखे हैं, आई थिंक आई वाज प्रोबेबली द लास्ट बैच जिसने प्रीवियस राउंड ऑफ एनसीईआरटी से पढ़ाई की। मगर हायर एजुकेशन में आते हुए हम जो चीज़ देखे कि they're trying to do this, they're trying to completely saffronize the syllabus, they're trying to remove certain people from the syllabus and trying to add certain people in the syllabus and certain forms of history in the syllabus। ये वो कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिलोसफी डिपार्टमेंट से अंबेडकर को हटाया गया, गांधी को हटाया गया, जगह जगह पर सावरकर को ऐड करिए, आप पढ़ाइए सावरकर को, बट इन व्हाट फॉर्म? लॉ के सिलेबस में मनुस्मृति आप लाए, आप पढ़ाइए, बट इन व्हाट फॉर्म? आप उसको हिस्टोरिकली पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? आप उसको कैसे पढ़ाएंगे? पेडागोजी उसकी क्या होगी? वो सवाल कंप्लीटली अनटच्ड है। एंड जो बन के आ रहा है सिस्टम सर, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पॉलिसी इन लोगों ने बनाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें स्पेसिफिक लूप होल्स छोड़े आरएसएस के पेनिट्रेशन के लिए, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक मॉडल हो, तमाम तरीके से आरएसएस के लिए लूप होल्स छोड़े, और उसके साथ साथ दे आर नॉट इवन एबल टू फॉलो देयर पॉलिसी ऑन द गोल्स दैट दे वांट। इतना ज़बरदस्त लीकेज, इतनी ज़बरदस्त इनएफिशिएंसी इनकी खुद की पॉलिसी और इनके खुद के गोल्स में फिलहाल हमको दिख रहा है। आरएसएस के प्रोग्राम्स जगह जगह, हर कॉलेज के भीतर पिछले दिनों आरएसएस के प्रोग्राम्स हुए। टीचिंग में अगर आप प्रोग्राम होते हैं, युवा संसद, they gave random names, basically an excuse to call some senior प्रचारक to the college,
और सिस्टम इस तरीके का क्रिएट किया कि आप उस प्रोग्राम में जाइए तो आपको अटेंडेंस मिलेगी। अच्छा, आप उस प्रोग्राम में जाइए। अभी मुझे 2 दिन पहले हिंदू कॉलेज के एक स्टूडेंट ने बताया, एक टीचर पूरे सेमेस्टर 5 क्लास लेने आए, एग्जाम के दिन आए और बोला कि कल ये प्रोग्राम है आरएसएस का, इस पे जाकर रिपोर्ट बनाइए, वो आपका इंटरनल असेसमेंट है। और आपका इंटरनल असेसमेंट एक टीचर के हाथ में 45% अब है। टीचर बनने के लिए मैक्सिमम जगहों पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं अगर एग्जांपल ले रहा हूं तो ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, एवरीथिंग गोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम हियर। यहां पर भी टीचिंग के लिए आपके लिए मॉडल बनाया गया कि यू हैव टू हैव एबीवीपी एक्सपीरियंस। आज स्कूल के बच्चे, शिक्षक और प्रिंसिपल सोशल मीडिया पर सफाई दे रहे हैं। कल शायद अस्पतालों के मरीज़ वीडियो बनाकर कहेंगे हम इलाज से कोई शिकायत नहीं, बहुत बढ़िया इलाज चल रहा है। और परसों बेरोज़गार युवा कैमरे पर मुस्कुराते हुए कहेंगे हमें नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे दुख की बात यह है कि शिक्षा जैसी गंभीर व्यवस्था भी अब इमेज मैनेजमेंट का हिस्सा बनती दिख रही है। एक छात्र अगर परेशान है, अगर उसे लगता है कि उसकी कॉपी गलत जांची गई, तो उसकी बात सुननी चाहिए, ना कि उसके सामने 10 प्रशंसा वाले वीडियो खड़े कर देने चाहिए। क्योंकि शिक्षा विश्वास से चलती है, डर से नहीं, प्रचार से नहीं और स्क्रिप्टेड तालियों से तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ सिस्टम का बचाव है या फिर देश के हर आलोचना को दबाने की नई संस्कृति बन रही है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।